So today's topic is mathematical operations on series. Now we have already learned that if we perform basic mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. on two NumPy arrays or list, the operation is done on each corresponding pair of elements. Similarly, we can perform mathematical operations on two series in pandas. In NumPy and in series on each element it will be done, whereas in list you will see that two lists will be concatenated. So that with example I will show you. While performing mathematical operations on series, index matching is implemented and all missing values are filled in with nan by default. So wherever values is missing, it will fill there with nan, not a number, nan, and wherever values will be there, the index matching will be there. Next, consider the following series A and series B for understanding mathematical operations on series in pandas. Now, series A is having 1, 2, 3, 4, 5 and the index is A, B, C, D, E. So, this is series A. How to create the series? This will come of 2 marks and then the mathematical operations will also be asked 1 mark or 2 mark. Now series B is having the values 10, 20, minus 10, minus 50 and 100 and the index they have changed here Z, Y, A, C, E. So A, C is common in both the series A and series B, whereas Z and Y are different. Now addition of two series, it can be done in two ways. In the first method, two series are simply added together as shown in the following code. So if you write here series A plus series B, so simply it will be added and the values you can see which is not matching there, nan is written. Like P was not there in table in series B, so nan is written. D was not there in series B, only 3 was matching, A, C and E. You can check here, A, C and E is there in series B and in series A also A, C and E is there. So whichever is common that it is adding here and whichever is not common there nan you have to write. So if you are asked with series A plus series B, what you will do? You will write first, you will see whichever is same with same index that you will calculate and with different index you will write nan value. Next, details of addition of two series. Now how it is done here, you can see in the first series A, B, C, D, E was there and in the second series B, A, C, E, Y and Z was there. So in this tabular form if you write, it will be very easy for you to calculate. Now the first one is 1 minus 10. Minus 10, so minus sign will be there because 10 is bigger and if you subtract it, so it will be minus 9. Second value was not there, so nan has been written. 50 minus 3 is 47 and sign is minus of the bigger number, so minus 47. Again, series B is not having any value of D, so nan is written. Next, 100 plus 5 will be 105. Then here also Y and Z no values are there, so nan. ये समझ में आ गया सबको? सीरीज ए और सीरीज बी को लिख के कैसे प्लस ऑपरेशन करना है, एडिशन करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही 1 मार्क 2 मार्क के. अब किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, दो सीरीज दिया रहेगा, अगर उनको ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो सीधे सीरीज ए प्लस सीरीज बी लिख दोगे. अगर आउटपुट पूछा जाएगा, सीरीज ए और सीरीज बी दिया हुआ है, आउटपुट पूछा जाएगा, तो ये प्रोसीजर है आउटपुट कैलकुलेट करने का. ऐसे टेबल बना लोगे, इंडेक्स लिख लोगे सीरीज ए का सीरीज बी के. अब जो कॉमन वैल्यूज है वो कॉमन वैल्यूज को डाल दोगे और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन हो जाएगा. ये प्लस साइन के लिए है, इसके बाद हम लोग माइनस, इनटू, स्लैश सब के लिए करेंगे. द सेकेंड मेथड इज अप्लाइड when we do not want to have nan values in the output.
we can use the series method add and a parameter fill value to replace missing value with a specified value. अब ये second method एक add method है, उसको use करेंगे. उसमें भी addition ही हो रहा है, लेकिन जहाँ पे missing value है वहाँ पे एक हम fill value use करके उसमें एक value ले लेंगे ताकि वो nan ना print करे, कुछ और data दिखाए. That is calling series A dot add series B. ये important है. Series A dot add series B is equivalent to calling series A plus series B, but add allows explicit specification of the fill value for any element in series A or series B that might be missing. जिसके पास value नहीं है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, series A dot add series B. यहाँ पे fill value में मैंने 0 डाल दिया. तो वही सेम टेबल को ड्रॉ करोगे तुम लोग, और जहाँ पे खाली था वहाँ पे सब जगह 0 आ गया. अब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. तो एडिशन में अब वो प्लस करके नैन नहीं दिखाएगा, प्लस करके वैल्यू दिखा देगा, क्योंकि जहाँ पे नैन था खाली था वहाँ पे 0 डल चुका. तो ये जो सेकेंड मेथड है, दोनों में डिफरेंस अगर पूछा जाएगा प्लस और ऐड, प्लस करके या ऐड मेथड में डिफरेंस क्या है. ऐड मेथड में हम फिल वैल्यू यूज कर सकते हैं, और फिल वैल्यू में हम जो भी वैल्यू डालेंगे जहां जहां खाली रहेगा वहां पे वो फिल वैल्यू डाल देगा, और उसके बाद फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो जैसे प्रीवियस केस में प्लस साइन में नैन आ रहा था, वो नैन नहीं आके यहाँ पे 0 डाल के वो आउटपुट प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकली अभी एक बार देख लेंगे सीरीज ए सीरीज बी बनाने के बाद. उसके बाद इसको हम लोग जुपिटर ओपन कर लेते हैं, या आइडियली ओपन कर लो. आइडियली ओपन करके एक सीरीज क्रिएट कर लो, सीरीज 1 और सीरीज 2. क्रिएट करने का कोड बता दो जल्दी से, कैसे क्रिएट करोगे सीरीज 1 और सीरीज 2. 2 सीरीज बनाना है. सपोज इसमें दिया है कि तुम लोग के मंथली टेस्ट के जो मार्क्स है वो सब हम लोग को ऐड करना है और फाइनल हमको रिपोर्ट प्रिंट करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्रिएट 2 सीरीज फॉर मंथली टेस्ट 1 एंड मंथली टेस्ट 2 मार्क्स एंड क्रिएट MT1 MT2 series monthly test and add the two. ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है. अब तुम इसको क्रिएट आंसर बताओ जल्दी से. जल्दी जल्दी बताओगे. सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, माइक ऑन करो जल्दी. import panda spd. हाँ, import pandas spd, वेरी गुड. इसके बाद mt1 equals to pd dot series. ठीक है, अब मंथली टेस्ट 1 सपोज मैं 5 स्टूडेंट्स के बना रही हूँ, तो 5 स्टूडेंट्स का मैंने सपोज डाल दिया 99, 98, 97, 96, 95. ये मैंने 5 स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट के मार्क्स बना दिए हैं. अब इसमें किसके मार्क्स हैं वो मेरे को इंडेक्स में लिखना है, तो नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इंडेक्स में मैं अभी के लिए मैंने ABCD डाल दिया है. तो A हो गया, फिर B सेकेंड स्टूडेंट हो गया है, देन C, D एंड E. तो ये 5 स्टूडेंट्स हो गए हमारे. ठीक है, अब नेक्स्ट हमको मंथली टेस्ट 2 क्रिएट करना है, तो वो ये मैं कॉपी कर ले रही हूँ यहाँ से. अब इसमें मार्क्स कुछ डिफरेंट है, तो मार्क्स सपोज यहाँ पे
मंथली टेस्ट में सपोज 50 के अंदर मार्क्स थे तो इसमें कुछ और मार्क्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे मार्क्स हो गए हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स, अगर सेम स्टूडेंट्स रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने सेम स्टूडेंट्स रखा है और MT1 प्लस MT2 प्रिंट कराना है, तो प्रिंट दो सीरीज का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने दो सीरीज का नाम जो दिया था वो MT1 और MT2 दिया था। अब जब मैंने ये इसको रन कराया तो क्या हो रहा है, ABCDE 5 स्टूडेंट्स के नेम आ गए हैं और ये दोनों मार्क्स 99 प्लस 45 इज 144, 98 प्लस 44 इज 142, तो ये ऐड होके आ गया। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम थे। अब हमने क्या किया, सेकेंड केस में दोनों के इंडेक्स हमने चेंज कर दिए। इसमें ABCDE है, इसमें हमने कोई दूसरे इंडेक्स डाल दिए हैं, M दूसरे स्टूडेंट्स डाल दिए हैं, M और N। ठीक है, अब जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जिसके वैल्यूज दूसरे के पास नहीं, दूसरे मंथली टेस्ट के नहीं है, M N और यहाँ पे B और C, तो देखो B और C और M और N में नैन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस जो रहेगा उसमें हम ऐड यूज करेंगे। तो ऐड जब हम यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने अगर ऐड यूज किया है, सॉरी, सपोज यहां से हमने सीरीज 1 MT1 डॉट ऐड फंक्शन यूज करके इसमें मैंने MT2 दे दिया है। अब इस केस में क्या होगा, मैंने कोई फिल वैल्यू नहीं दिया है, तो इस केस में जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे ABCD ये तो सेम थे, इसीलिए डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे B और C के जगह पे हम चेंज करके M और N। अब जब हम रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नैन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने फिल वैल्यू नहीं डाला था। हमको क्या करना है, हमको इसमें फिल वैल्यू डालना है। तो फिल वैल्यू जो है यहाँ पे फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0 या फिर जो भी वैल्यू आपको डालना है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको मेंशन कर देंगे। तो यहाँ मैंने जो नेक्स्ट लिखा है, अब इसको सेम प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने फिल वैल्यू डाल दिया। तो फिल अंडरस्कोर वैल्यू, इसमें मैंने इक्वल्स टू 0 डाल दिया। अब क्या होगा, जब हम रन कराएंगे तब यहाँ पे 0 डाल देने से B और C और M और N इसके पास जो भी वैल्यूज थे, B के पास 98 था तो 98 ही आ गया, क्योंकि बाकी जो B इसके पास कुछ भी नहीं है और फिल वैल्यू में हमने 0 डाल दिया। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको ध्यान से देखना है। आउटपुट क्वेश्चंस में अगर आउटपुट पूछा जाएगा, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, तो आपको ये वाला आउटपुट लिखना है। और अगर ये प्रोग्राम दिया जाएगा कि इसमें ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो दो मेथड दिखाओगे इसमें। पहला मेथड क्या दिखाओगे, प्लस साइन यूज करके। दूसरा मेथड क्या दिखाओगे, और करके लिखोगे ऐड मेथड से। और थर्ड मेथड फिल वैल्यू से दिखाओगे। तो ये तीनों मेथड को तुमको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2 सीरीज या 2 मंथली टेस्ट मार्क्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, नाउ यू ऐड द 2 and display the result। तो ऐड करने के लिए write the code to add the 2 series। तो इसमें तीनों मेथड दिखाओगे। पहला मेथड क्या दिखाओगे, MT1 प्लस MT2। ये तो सिंगल 1 कॉलम है। अगर ये डेटा फ्रेम होता तो इसमें कॉलम का नेम मेंशन करना पड़ता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम लिखना पड़ता। अभी नेक्स्ट हम लोग जब डेटा फ्रेम करेंगे तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स, अभी तो सीरीज के पास एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम है, इसलिए हमने सीधे MT1 प्लस MT2 दे दिया।
तो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एडिशन करने को आएगा, जिसमें हमको प्लस साइन यूज करके लिखना है, ऐड करके लिखना है, और करके तुम दोनों मेथड लिखोगे, ठीक है। और थर्ड मेथड हम फिल वैल्यू करके लिखेंगे। तो ये तीनों मेथड तुम कॉपी में शो करोगे। थ्योरी में आएगा ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें तीनों मेथड लिखो, ठीक है। बोर्ड पेपर में अभी दिखा दूंगी जिसमें एडिशन वाला आता ही है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो ये तो ऐड होके हो गया है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सीरीज, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेम मेथड से होगा, खाली सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 लिखेंगे, तो जिसमें ये माइनस करके डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद अब ये माइनस में तुमको थोड़ा बहुत ये केयरफुली सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे होता है प्लस और माइनस, देख लो एक बार थोड़ा। देखो इसमें अगर सपोज टेबल 1 और टेबल 2 दिया हुआ है, बेटर एक्सेल खोल लेते हैं हम लोग, एक्सेल में ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। हाँ, अब इसमें सपोज मैंने 2 कॉलम बनाया है यहाँ पे। सपोज तुम्हारा ये MT1 के मार्क्स है और MT2, इसमें तो माइनस साइन हम डाल नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, कुछ और डेटा लेते हैं। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सम कोल्ड रीजन है, तो टेम्प 1 है, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट रीजन, टेम्परेचर ऑफ सेकेंड रीजन। एक इंडेक्स भी डाल देते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज कोई कंट्री है जिसमें कभी टेम्परेचर गर्म होता है और कभी ठंडा होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी कंट्री का नाम लिख लिया है। अभी के लिए मैं ABCD डाल दे रही हूँ। तो कंट्री A है जिसका टेम्परेचर कभी ये 10 रहता है और विंटर में सपोज ये -9 रहता है, ठीक है। ऐसे ही कंट्री BCDE, ऐसे सारे कंट्रीज दिए हुए हैं। अब उनका कुछ टेम्परेचर हमारे पास है। सपोज इसका 20 टेम्परेचर है, टेम्परेचर 2 नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे सपोज -4 है, यहाँ पे -9 है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे टेम्परेचर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसके पास -5। अब इसमें क्वेश्चन पेपर में क्या आ गया है कि प्रिंट दोनों का एडिशन है, टेम्प 1 प्लस टेम्प 2 आ गया है एग्जाम में। तो एग्जाम में सपोज यहाँ पे टेम्प 1 प्लस टेम्प 2 का आंसर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेम्प 1 प्लस टेम्प 2 लिख लिया है। एक्चुअली में स्मॉल लेटर होगा इसमें, ठीक है, फिर से टाइप कर लेते हैं। टेम्प 1 प्लस टेम्प 2, ठीक है। अब इसका क्या होगा बताओ, प्लस में क्या लिखोगे? फर्स्ट आंसर क्या होगा प्लस में? आंसर बताते जाओ। 1। सेकेंड nan, nan, वेरी गुड। थर्ड -13, -13। देखो दोनों माइनस साइन होते हैं तो प्लस हो जाएगा, और माइनस साइन दोनों में है इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाले में nan, नैन हो जाएगा, इसके बाद भी नैन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? टेम्प 1 माइनस टेम्प 2। अब इसका आंसर बताओ। 19, इसमें जब माइनस साइन लगता है तो 10 माइनस और वैल्यू में -9 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो इसमें 19, वेरी गुड। नेक्स्ट nan, नैन, तो ये नैन वाले तो सेम ऐसे ही आ जाएंगे, नैन वाले में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 3 इसमें नैन वैसे ही आ जाएंगे। अभी फिल वैल्यू का भी हम लोग करेंगे। हाँ, इसका क्या आएगा? -5, -4 माइनस 5, ऑफ -9, हाँ, ठीक है।
तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया है। दोनों का साइन जब डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है, और जो हायर वैल्यू है 9 उसका साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे खाली 5 आ जाएगा। हम माइनस नहीं रहेगा। नहीं, इसमें खाली 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 5 आ जाएगा इसको देख लो एक बार ध्यान से। -4 है, ठीक है, फिर मैंने माइनस लिखा और ब्रैकेट में -9 आ गया। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो -4 यस। प्लस 9 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन अलग है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 आ जाएगा, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आ जाता है, तो इसमें खाली 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो है फिल वैल्यू करके करना है। तो फिल वैल्यू या पहले हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं। तो ऐड करके कैसे लिखेंगे, temp1 डॉट ऐड ब्रैकेट में temp2, ये तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट वाले का एडिशन वाले का सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी का आंसर उठा के मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, फिल वैल्यू यूज किया। तो यहाँ पे फिल वैल्यू में मैंने 0 डाल दिया। फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब आंसर बताओ क्या आएगा इसका, यहाँ पे आंसर बता दो। एडिशन हो रहा है, जिसके पास वैल्यू नहीं था वहां पे 0 आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे 0 और जो वैल्यू नहीं थे वहां पे 0 आ गया। ठीक है, तो इस केस में इसको एक काम करते हैं, फिर से लिख लेते हैं ताकि 0 में डाल सकूं। तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ से, अब बताओ यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया फिल वैल्यू में। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले का तो सेम ही होगा, 10 माइनस 9 1 आ गया, फिर 20 माइनस 0 कितना आ रहा है, 20 प्लस, ये सॉरी एडिशन है, तो एडिशन में 20 प्लस 0 कितना आ रहा है, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट -4 -9, इसमें कितना आ रहा था, प्लस साइन यूज करके ऐड लिखा हुआ है ना, तो प्लस साइन बीच में लग रहा है, तो ये -13 जितना आ रहा था उतना ही रहेगा। -4 प्लस 0 कितना आएगा, -4 ही रहेगा, और ये 0 -5 रहेगा, तो इसका आंसर ये आएगा। आगे समझ में, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आउटपुट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आउटपुट आएगा तो तुमको ये आंसर लिखना पड़ेगा आउटपुट में, और अगर बोला जाएगा कि दोनों को एडिशन करके दिखाओ तो डायरेक्टली तुम प्लस साइन या ऐड लगा के, तो बहुत इजी हो जाएगा, एडिशन करके दिखा दो। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लो, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी जब हमने माइनस किया, जैसे यही सेम प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। और जब हम इसमें माइनस साइन डाल के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, माइनस साइन, तो उसका आउटपुट जो रहेगा वो आ जाएगा दोनों का। ठीक है, माइनस हो गया, 99 माइनस 45 कितना होता है, 54, 98 माइनस 44 54। अब इसमें तुमको एक चीज ध्यान से देखना है कि सपोज क्वेश्चन पेपर में MT2 माइनस MT1 आया, अब क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर। तुमको ये चीज ध्यान में देना है कि अगर MT1 माइनस MT2 लिख रही तो सेम आ रहा है, लेकिन विद अ प्लस साइन। क्यों, अ बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर।
जब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करते हो 99 माइनस 45, तब 54 आ रहा था, क्योंकि MT1 माइनस MT2 लिखा हुआ था। क्वेश्चन पेपर में तुमको ये चीज ध्यान देना है कि अगर बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखोगे, और अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, जैसे इस केस में 45 माइनस 99 हुआ है, तब माइनस साइन के साथ लिखो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है सीरीज का। अब इसमें जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसको कर लो। ये तो माइनस साइन के साथ हो गया। नेक्स्ट सब, जब हम सब लगाते हैं, यहाँ पे देखो सीरीज ए, सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक सब फंक्शन यूज करते हैं। तो सब फंक्शन में जो भी फिल वैल्यू हम डाल देंगे, उस फिल वैल्यू को डाल के फिर वो सेम काम ही करेगा, सब्ट्रैक्शन ही करेगा। खाली डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए कि यूजिंग सब मेथड you can use a fill value, whereas using the minus operator you cannot use a fill value. सेम मल्टीप्लिकेशन में भी तुम अगर स्टार लगा रहे हो तो डायरेक्ट इनटू करके लिख दोगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज कर रहे हो जो कि MUL है, अगर फंक्शन यूज करोगे तब हम, अगर बिना फिल वैल्यू के कर रहे हो तो ये ऊपर वाला आंसर ही आ जाएगा नैन के साथ, लेकिन अगर फिल वैल्यू डाल दोगे तो फिल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके वो डिस्प्ले करेगा। सेम डिवीजन के लिए स्लैश यूज करोगे तो वही सेम नैन वैल्यू आ जा रहा है विदाउट वैल्यू में, और जहां पे हमको DIV यूज करना है उस केस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे वो INF दिखा रहा है। देख लो डिफरेंस, देख लो यहाँ पे नैन वैल्यू आ रहा था और यहाँ पे INF आ रहा है। तो हम लोग इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, डिव वाले को ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड वाला था उसी को मैं कॉपी कर ले रही हूँ, और जो ऐड फंक्शन था इसको मैंने यहाँ से लास्ट में यहाँ पे अब ऐड के बाद मैंने इसको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहाँ पे 3 फंक्शंस कर रहे हैं। एक सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने लिखा है, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है MUL, और एक डिवीजन के लिए लिखा है DIV। जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सारे वैल्यूज है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एडिशन में प्लस होके आ गया, सब्ट्रैक्शन में माइनस होके आ गया, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होके और डिवीजन में डिवाइड। लेकिन इसमें अगर मैं चेंज कर दे रही हूँ वैल्यूज को, तो इस केस में सपोज मैंने कोई एक वैल्यू को चेंज कर दिया, B के जगह पे मैंने यहाँ M लिख दिया। अब जब हम रन करा रहे हैं तो एक एक वैल्यू, इसका B और इसका M, तो B और M की जगह पे नैन आ गया है। ठीक है, तो इसमें जिसके जिसके पास वैल्यूज नहीं है वहां पे ये नैन आ गया। और यहाँ पे अगर मैं उसको फिल वैल्यू को डाल दूंगी तो फिल वैल्यू कॉमा में फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू 0, एडिशन में मैंने इक्वल्स टू 0 डाल दिया है, फिल में FILL है, और बाकी में सब्ट्रैक्शन में भी हम कॉमा 0 डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मैं 1 डाल दे रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन में मैं 1 डाल दे रही हूँ फिल वैल्यू को, और डिवीजन में भी 1 डाल दे रही हूँ मैं, कॉमा 1 डाल दे रही हूँ। अब जब इसको हम रन कराएंगे तो नैन की जगह पे, अच्छा इसमें एक डिफरेंस तुमको क्या दिखा कि यहाँ पे NCERT बुक में क्या था, NCERT बुक में जहाँ पे हम डिव यूज कर रहे थे यहाँ पे इन्होंने INF लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नैन दिखा रहा है। ठीक है, तो तुम अपने NCERT बुक में करेक्शन कर लोगे, जिन लोग ने बुक्स खरीद लिए हैं उन लोग उसमें करेक्शन कर लो कि यहाँ पे उसको साइड में लिख लो कि नैन ही दिखा रहा है। डिव में भी यहाँ पे डिवीजन में भी यहाँ पे नैन दिखा रहा है। तो ये NCERT बुक में यहाँ पे तुम करेक्शन कर लो, यहाँ पे नैन लिख लो। ठीक है,
और आउटपुट को हम अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी फिल वैल्यू डाला है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है फिल वैल्यू के वहां पे मैंने जहां 0 डाला था वो 98 ले लिया है। अब ये चीज याद रखना कि आउटपुट किस तरीके से, वो हर जगह फ्लोट आउटपुट आ रहा है। देखो एडिशन में मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा था, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कहीं पे मैंने डॉट जीरो नहीं लिखा है। लेकिन जब मैं मेथड यूज कर रही हूँ तो मेथड में क्या कर रहा है, वो डॉट जीरो दिखा रहा है। देखो सब में उसने डॉट जीरो लिखा है। लेकिन जब मैंने प्लस साइन माइनस साइन यूज किया था, जैसे यहाँ पे मैंने प्लस साइन या माइनस साइन यूज किया था, तो उसमें उसने डॉट जीरो नहीं दिखाया था और इंटीजर आया था। मीन्स अगर इंटीजर है और मैं अगर प्लस साइन और माइनस साइन यूज करूंगी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे mt1 प्लस mt2 यूज किया है, तो प्लस साइन और माइनस साइन में डायरेक्टली ये वैल्यूज आ जा रहे हैं, डॉट जीरो नहीं आ रहा है। जबकि मैंने जब ऐड मेथड यूज किया है तो डॉट जीरो और नीचे फ्लोट आ रहा है। आगे डिफरेंस समझ में? ठीक है, दोनों के आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ रहा है और दोनों को कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो 2-2 मार्क्स के आएंगे ही, 100% है। एक आएगा कि राइट कोड टू ऐड द टू सीरीज, ये आएगा, और दूसरा आएगा राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। तो आउटपुट में तो तुमको ये लिखना है, और जहां पे राइट कोड लिखने को बोलेगा तो दोनों सीरीज को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और दोनों को मैंने प्लस साइन करके ऐड कर दिया। ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है तुमको। अगर एडिशन बोलेंगे तो प्लस साइन से कर दोगे, सब्ट्रैक्शन माइनस साइन से, मल्टीप्लिकेशन स्टार लगाओगे, और डिवीजन करने बोलेंगे तो स्लैश लगाओगे। ठीक है, तो ये चारों मेथड को तुम लोग एक जगह अभी कॉपी में लिख लो कि एडिशन के लिए यहाँ पे काम करो, हैश करके लिख लो कि ये मैंने एडिशन ऑफ टू सीरीज के लिए यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन की जगह पे अगर वहां पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे पूछे जाते, तो यहाँ पे मैं सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तीनों के लिए मैं यहाँ पे माइनस साइन करके मैं यहाँ पे हैश फॉर सब्ट्रैक्शन, देन स्टार लगा लो। स्टार किसके लिए यूज होता है? फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और स्लैश। इसको कॉपी में देखो, नोट्स डेली बनाओगे, क्या होता है अभी तो याद है तुमको, जैसे समर वेकेशन आएगा सब कुछ भूल जाते हो। समर वेकेशन के बाद वाले एग्जाम में ये सारे इजी, इतना इजी है कि एडिशन में प्लस लगाना है, तो अभी तो तुमको बहुत इजी लग रहा है, अभी वाले मंथली टेस्ट में नंबर भी मिल जाएगा। जैसे ही 2 महीने का समर वेकेशन होगा, तुम्हारा ब्रेन पूरा गेम से या कुछ दूसरी चीज से भर जाएगा, तब पूरा भूल जाओगे। और उसके बाद जब जुलाई में मंथली टेस्ट होगा तो उसमें फिर सब गलत हो जाएगा, इतना इजी भी सब गलत हो जाएगा। तो इसीलिए नोट्स बना लो कि ये आने वाले हैं, और एग्जाम के पहले या समर वेकेशन में रिवाइज करते रहोगे कि कैसे ये फंक्शनिंग होता है। ठीक है।